बेटा देखो, नॉट ओनली यार बेटा, सी डिस्टेंस इज जस्ट हाफ ऑफ 2 पाई आर। तो अगर 2 पाई आर का हाफ करोगे तो कितना आएगा? पाई आर। तो दिस इज द डिस्टेंस पाई आर, क्योंकि दिस इज जस्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस इज 2 पाई आर का हाफ। 2 से 2 कैंसिल होगा, your distance will be pi r. This is the distance for the half revolution, because the question is an insect is crawling on a circular path, ठीक है, of radius r, then what is the distance and displacement in half revolution? Now the second part in complete revolution. Complete revolution. बोलो बेटा, in complete revolution what is distance? Displacement is zero. Yes, I think right. But this distance, circumference. Good. The circumference, the distance is 2 pi r. This is the correct answer. And displacement is zero, because the object reaches at its initial position in one complete revolution. And if there is no shortest distance, or you may say initial and final position are same, so the displacement is zero. I hope the question is clear for everyone. Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सुनना बेटा। A girl leaves her home, जैसे सपोज दैट दिव्यांशी leaves her home, ठीक है, because she has replied yes. सपोज कि दिव्यांशी leaves her home, she travels in a car and returns home after covering 20 kilometers in half an hour. What is her average displacement? Are you sure about the are you clear about the question? Listen once again. Divyanshi leaves her home. She travels in a car and returns home after covering 20 kilometers in half an hour. What is her average displacement? Two students has replied, Jain Poddar, and one another Akhil has also given zero answer. Zero answer. Everyone is zero. Good. The average displacement is zero. Why it is zero? Because C has reached at his initial position. Good students. See the next question. देखते हैं बेटा सबसे पहले आंसर कौन देता है। अगर आज जो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आंसर दे देगा वो समझो आज फर्स्ट आज का जो है विनर होगा, ठीक है। कैन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, अब सब तैयार है सबसे पहले मैसेज बॉक्स में करने के लिए। मैसेज बॉक्स में कमेंट करना बेटा। पहले इसी डिस्टेंस 40 किलोमीटर ये किसने लिख दिया? जैन पोद्दार, कहां से क्वेश्चन मिल गया आपको बेटा? अभी तो हमने क्वेश्चन बोला भी नहीं है, आप कमेंट मैसेज बॉक्स में रेडी है सब पहले से आंसर देने के लिए। चलो ठीक है, क्वेश्चन पहले सुन लेना तब आंसर देना, ठीक है। और सबसे पहले आज जो देगा वही विनर है। कैन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, लिसन क्वेश्चन केयरफुली, कैन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट be smaller than the magnitude of its displacement? Can the distance traveled by an object
be smaller than the magnitude of its displacement. Yes, Jan Podar, second आकांक्षा, third निर्णय. ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग, अच्छी तैयारी कर रहे हो, गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ये नो द यस यस राइट आंसर, नो दैट इज राइट, बिकॉज डिस्टेंस कभी भी अपने मैग्नीट्यूड के से लेस हो ही नहीं सकता है, इक्वल हो सकता है। चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। निर्णय है द जैन ए द फर्स्ट विनर ऑफ टुडे। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन व्हाट कंडीशन, ध्यान से सुना बेटा, क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं। इन व्हाट कंडीशन इज द डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल। एक बार फिर से क्वेश्चन सुन लो। इन व्हाट कंडीशन इज द डिस्टेंस कवर्ड be equal to the magnitude of the displacement of the particle। अभी आपसे क्वेश्चन पूछा था, या क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट करना है, किस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकता है। गुड, निर्णय has given the right answer, Jayan has also given the right answer। if they covered object covered this path in a straight line। ठीक है बेटा, बिल्कुल सही आंसर आप लोग दे रहे हो। अगर ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन देन डेफिनेटली डायरेक्ट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इज इट पॉसिबल दैट द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो but not the distance? Is it possible the displacement is zero but not the distance? Yes. In which case, anyone just unmute and tell me in which case the displacement may be zero but the distance cannot be zero. कोई भी एक केस बता दो। When body returns to it. Yes. Good, बहुत अच्छा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से सुनो बेटा, ये सारे क्वेश्चन बहुत आपको अच्छे लगेंगे। क्वेश्चन है, व्हेन डू यू से दैट बॉडी इज एट रेस्ट एंड व्हेन डू यू से दैट इट इज इन मोशन। आंसर आपको वन लाइन में देना है। व्हेन डू यू से द बॉडी इज एट रेस्ट एंड व्हेन डू यू से द बॉडी इज इन मोशन। बेटा एक लाइन करेक्शन कर लो एक वर्ड का, विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, ठीक है। पोजीशन इफ इट इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि हमने आपसे बोला भी था कि अगर टाइम, ये जो एक्स एक्सिस पे टाइम ले रहे हैं, टाइम, अगर इस टाइम के अकॉर्डिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इफ द पोजीशन इज नॉट चेंजिंग, if the position is not changing, so the definitely the object is at rest, and if the position of the object is changing with respect to time, then the object is in motion। चलो, listen, convert kilometer per hour
into meter per second. How can you convert? Suppose that you are given any value, जैसे 25, 45 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, it is given, and you have to convert in meter per second. Then how can you convert? By multiplying by 'good'. Some student has replied 18 upon 5, that is wrong. 5 upon 18 is the right answer. ठीक है बेटा, 5 upon 18, yes, जानवी तिवारी है ऑल्सो रिटेन। याद रखना, क्योंकि बार बार मल्टीप्लाई डिवाइड करने से बेटर है कि जस्ट बाय मल्टीप्लाइंग by 5 upon 18 you will get in meter per second. So come to a question 45 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकेंड। चेंज करके बताओ बेटा, 45 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड। 12.5 meters per second, everyone. 45 multiply 5 upon 18. 25 divided by 2, 12.5 meter। क्वेश्चन ही इसीलिए दिया था ताकि आप आसानी से इसको कर लें। इसी का एक रिवर्स करके दिखाओ बेटा, 330 मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर। हाउ कैन यू कन्वर्ट मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर? कैसे कन्वर्ट करोगे? जस्ट इसी का उल्टा, बाय मल्टीप्लाइंग 18 अपॉन 5। यस, so convert 330 meter per second into kilometer per hour। जल्दी करो बेटा। 1188, yes, right answer 1188। good, 1188, 330 into 18 upon 5, 1188 मीटर पर, राइट आंसर, बिल्कुल सही। हाँ सॉरी, किलोमीटर पर, क्योंकि वी हैव कन्वर्टेड इनटू किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर पर, पूछा भी किलोमीटर पर आवर लिखा, ठीक है। तो ओके, क्वेश्चन, वैसे तो क्वेश्चन टोटली कंसेप्चुअल है बेटा। क्वेश्चन पहले सुनना। व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ द डिस्टेंस टाइम टेबल, हाउ कैन वी रेक्टिफाई इट? ध्यान से सुनना, क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ डिस्टेंस टाइम टेबल, हाउ कैन वी रेक्टिफाई इट? What is the drawback of distance timetable? How can you rectify it? Distance timetable में क्या कमी रह गई है, इसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं? आप क्वेश्चन समझा रहे हैं, क्योंकि आई थिंक यू कांट अंडरस्टैंड इन द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन समझा रहे हैं, देखो, डिस्टेंस टाइम, यहाँ पे टेबल बना दिया, डिस्टेंस बोल दिया, ठीक है, और इसमें लिख दिया ऐसे।
अब जैसे मान लो कह दिया 100 इन मीटर में, सपोज 100 मीटर 2 सेकेंड, 200 मीटर, ठीक है 3 सेकेंड, 400 मीटर, 300 मीटर 4 सेकेंड, ऐसे कुछ जो है, मतलब एक डेटा आपको दे दिया टेबल बनाकर कि कुछ सर्टेन डिस्टेंस आर कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन सर्टेन टाइम। तो अगर इस तरह से आपको डेटा दिया हो, इसमें आपको कोई ड्रॉबैक दिख रहा है, कोई कमी दिख रहा है, अगर दिख रहा है तो इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इसमें क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, दिस इज योर क्वेश्चन। अब आपको समझ में आ गए होंगे। यूनिट में भी एनीथिंग, सपोज दैट मीटर सेकंड में है, किलोमीटर मीटर में, वी हैव टू राइट द यूनिट। नो 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 नो, यूनिट वगैरह की कोई बात नहीं है बेटा। किलोमीटर में मीटर, किलोमीटर आवर में दिया, मीटर पर सेकंड में, मीटर और सेकंड में दिया, उससे मतलब नहीं है। अगर आपको डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ सॉरी टेबल दिया हो, तो इस टेबल में क्या ड्रॉबैक है, इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, अगर कुछ है तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। We can find speed by this data। हाँ, तो ड्रॉबैक बताओ बेटा, हमने ड्रॉबैक पूछा था, कमी क्या थी, कमी कुछ ऐसा इसमें ड्रॉबैक निकालो जो तुम्हें मतलब वाकई में लगे कि हाँ इसमें ये ड्रॉबैक है, इसको ऐसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। इंटरवल ऑफ टाइम ये तो गिवन ही है भाई, जो भी टाइम दिया रहेगा तो इंटरवल तो आपको मिल जाएगा, तो इसमें ड्रॉबैक तो मिला नहीं। और सोचो, ध्यान रहे, जोर लो, दिमाग पे जोर दो बेटा, प्रेशर डालो अपने माइंड पे, सोचो और क्या हो, और क्या आप नहीं पा सकते हो इस जितना पढ़े उस सब में। वी हैव टू राइट द डिस्टेंस इन द डिस्टेंस कॉलम एंड टाइम इन द टाइम कॉलम। ये तो गिवन ही है ऑलरेडी कि डिस्टेंस डिस्टेंस में, टाइम टाइम में गिवन है बेटा, ये तो गिवन ही है, क्वेश्चन में ही गिवन है। डिस्टेंस टाइम, हाँ यही, डिस्टेंस एंड टाइम इज गिवन बेटा। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि डिस्टेंस एंड टाइम इज गिवन in a table, then what is the speed? Why not speed is not given from table? You can find speed। अगर आपको पता है कि एक पर्टिकुलर एक टाइम इंटरवल में एक डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो वेरी इजीली यू कैन फाइंड द डिस्टेंस, सॉरी स्पीड, ठीक है। और सोचो, जितना आपको हमने अब तक जो वर्ड आपको सिखाए हैं, अब वर्ड में क्या क्या सिखाया है, स्केलर, वेक्टर, पोजीशन, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें सोचो कि इन टेबल में हम क्या ऐसा फाइंड नहीं कर सकते। ओके, देखो बेटा, दिव्यांशी रिप्लाई ड्रॉप इट। हम आपको आंसर दे रहे हैं, शायद आप नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे यहाँ पे बेटा डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है एंड टाइम दे रखा है। तो सपोज दैट इट इज गिवन कि 100 मीटर डिस्टेंस इज कवर्ड इन 2 सेकेंड, तो वेरी इजी यू कैन फाइंड द स्पीड। बट ये बताओ, अगर आपको ये तो दिया है कि टाइम भी इतना, डिस्टेंस भी दिया हुआ है, इतना टाइम भी दिया हुआ है, स्पीड भी आप फाइंड कर लिए, लेकिन हाउ कैन यू फाइंड कि वेयर ही हैज रीच्ड? जैसे आपसे पूछे कि वो कहां पे पहुंच गया, कहां पे पहुंचा है, किस जगह पे गया है, व्हाट यू कैन फाइंड, व्हाट कैन यू से अबाउट दैट? आप नहीं बता पाओगे ना, क्योंकि आपको पता ही नहीं वो किधर गया और कहां पे है। तो दैट इज द पोजीशन। with the help of table you cannot find the position of the object। Then how can you find the position of the object?
by using graph. If you will draw the graph, मतलब if you will convert this table into graph, like taking time and distance on y-axis and time on x-axis, so definitely by graph you can find the position and direction, displacement, etc. वगैरह जो भी ग्राफ से आप सब कुछ फाइंड कर सकते हो. सो देयर इज ए ड्रॉबैक कि वी कैन नॉट फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टेबल. सो वी शुड यूज ग्राफ फॉर दिस डेटा so that we can find the position of the object. This is the ड्रॉबैक. अब एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आपके पास टाइम भी नहीं रहेगा, लगभग टाइम ओवर हो चुका है, 1-2 मिनट रह गए हैं. एक लास्ट क्वेश्चन है बेटा, सुनना. व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी? हालांकि सब कुछ पढ़ दिया, ये हमने आपको बताया भी नहीं था. वैसे फिर भी अगर आप कहीं भी पढ़े हो किसी बुक में या कहीं स्टडी किए हो, सेल्फ स्टडी किए हो, तो वहां से भी आप पढ़े होंगे, जरूर बता सकते हो. नहीं तो आई विल टेल यू विदिन 2 मिनट्स. 2 मिनट आपके पास है. व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी? ये तो जनरल इक्वेशन है, एक्सीलरेटिंग मोशन का जनरल इक्वेशन है बेटा. यूनिफॉर्म है कि नहीं इसकी कोई, यस 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 यस, वैभव सिंह हैज गिवन राइट आंसर. बहुत सही जवाब दिया है वैभव, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने. पर व्हाट इज, यू विल से हियर, डी इज व्हाट? डी इज व्हाट? यस मैम, यस मैम. ओके. D dot distance beta, D is displacement. D is displacement, and then it will be correct. Okay. Thank you, students. I hope you have enjoyed the session. We'll meet you in the next session with some interesting question related to this topic. Thank you, students.